جو ہم پر پابندیاں لگائی گئی ہیں اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ پاکستان قطعی طور پر کوئی ایسا ارادہ نہیں رکھتا جہاں پر ہمارا نیوکلیر جو سسٹم ہے وہ اگریسو ہو۔ اٹ از جسٹ ڈیٹرنس، نتھنگ ایلس۔ اٹس اے پروگرام ٹو ڈیفینڈ پاکستان۔ خدا نخواستہ پاکستان کے خلاف کوئی اگر اگریشن ہوتا ہے، فورن آفس نے ایک مربوط کمپریہنسو جواب دیا ہے۔ پاکستان کا نیوکلیر نہ یہ میرا ہے، نہ یہ کابینہ کے آنریبل ممبرز کا ہے، عوام کا یہ پروگرام ہے۔ امریکی پابندیاں بلا جواز، پاکستان کے جوہری پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، پوری قوم متحد ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اظہار خیال، کہا کہ پاکستان کا دفاعی نظام جارحیت کے لیے نہیں، دفاع کے لیے ہے۔ پاکستان اپنے دفاع کے لیے مضبوط اقدامات کرتا رہے گا۔ ایٹمی پروگرام 24 کروڑ عوام کا ہے جو ہم سب کو عزیز ہے۔ پوری قوم اس پروگرام پر یکسو اور پوری طرح متحد ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کسی کی نیت پر شک نہیں، حکومت اور اپوزیشن کی کمیٹیاں ایسا حل نکالیں گی جو پاکستان کی بہترین مفاد میں ہوگا۔ قومی مفاد کو سامنے رکھ کر گفتگو ہوگی تو یکجہتی کو فروغ ملے گا۔ کہا کہ دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا، دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ پاک فوج کے جوان وطن کے دفاع کے لیے جانیں دے رہے ہیں۔ امریکی پابندیوں سے دفاعی فیصلوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پاکستان کی سیکیورٹی کا فیصلہ قوم کرے گی اور کسی بیرونی دباؤ کا اثر نہیں ہونے دیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا امریکہ کو دو ٹوک پیغام۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان پر ماضی میں بھی بہت سی پابندیاں لگیں، ہم نے اپنی سیکیورٹی پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے اور مستقبل میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ امریکی اقدامات پاکستان کی دفاعی پوزیشن کو کمزور نہیں کر سکتے۔ خطے میں میزائل سسٹمز اور جوہری ٹیکنالوجی کی دوڑ میں آغاز بھارت نے کیا، بڑی طاقتوں کو بھارت کے خلاف سخت اقدامات اٹھانے چاہیے۔ یورپی یونین کے بیان پر رد عمل میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستانی آئین میں اندرونی معاملات حل کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ قوم اپنے اندرونی مسائل کو حل کرنا جانتی ہے، اس معاملے میں کسی بیرونی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا 19 فروری سے آغاز، شیڈیول کا باضابطہ اعلان۔ ٹورنامنٹ میں 8 ٹیموں کے درمیان 15 میچز ہوں گے۔ افتتاحی میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کراچی میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان اور بھارت کا میچ 23 فروری کو دبئی میں ہوگا۔ گروپ اے میں پاکستان، بھارت، نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش شامل۔ گروپ بی میں جنوبی افریقہ، آسٹریلیا، افغانستان اور انگلینڈ مد مقابل ہوں گے۔ سیمی فائنل 4 اور 5 مارچ کو کھیلے جائیں گے۔ چیمپئنز ٹرافی کا فائنل 9 مارچ کو ہوگا۔ برابری اور عزت کی بنیاد پر چیمپئنز ٹرافی کا معاہدہ طے پایا۔ چیمپئنز ٹرافی کے شیڈیول کے اعلان پر چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا پیغام، کہا کہ انٹرنیشنل کرکٹ کے مفاد کو فروغ دینے کے لیے بورڈ ممبران کی خدمات قابل قدر ہیں۔ پاکستان کے لیے چیمپئنز ٹرافی کا انعقاد ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ٹورنامنٹ کھلاڑیوں، آفیشلز اور شائقین کے لیے یادگار تجربہ ہوگا۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا آج 148واں یوم پیدائش۔ ایک عظیم آئین پسند، اعلیٰ درجے کے سیاستدان، متحرک مسلم رہنما، زمانے جدید کے سب سے بڑے قوم ساز، ہمہ جہت شخصیت، زندگی کے ہر شعبے میں کامیابیاں سمیٹی۔ قائد اعظم نے وہ کر دکھایا جس کا عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ بر صغیر کی ایک پسی ہوئی اور متفرق اقلیت کو اکٹھا کیا، مسلمانوں کے خوابوں کو زبان دی، ان کو ہم آہنگ کیا، واضح سمت عطا کی اور ایک دہائی کے اندر قوم کو ایک وطن فراہم کیا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا یوم پیدائش پر بانی پاکستان کو خراج عقیدت۔ صدر مملکت نے پیغام میں کہا، قائد اعظم نے ایک سیاسی جدوجہد کے ذریعے تاریخ کا دھارا بدلا۔ نازک ترین دور میں قائد اعظم کی قیادت غیر معمولی صلاحیتوں کا ثبوت ہے۔ ایک خوشحال اور انصاف پر مبنی قوم بننے کا ہمارا سفر ابھی جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ محمد علی جناح کی انتھک محنت کی بدولت پاکستان معارضے وجود میں آیا۔ بانی پاکستان نے ایک بار کہا تھا کہ ناکامی میرے لیے نامعلوم لفظ ہے۔ آئیے قائد اعظم کی میراث سے سبق حاصل کریں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف اور سروسز چیفز کا بھی بابا قوم کو خراج عقیدت۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے پیغام میں کہا گیا، مسلح افواج قائد اعظم کی بے مثال قیادت کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ قائد اعظم کی انتھک کوششوں نے عوام کو متحد کیا۔ قائد اعظم نے ایک خود مختار اور آزاد پاکستان کی بنیاد رکھی۔
सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, क्रिसमस मोहब्बत, इत्तेहाद और उम्मीद की तरग़ीब दिलाती है। पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बरादरी के किरदार का एतराफ़ करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, मसीही बरादरी के मुल्की तरक्की के लिए तावन को खराज तहसीन पेश करते हैं। हुकूमत तमाम मजहबी बरादरियों के हक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। दुआ है आने वाला साल मुल्क के लिए उम्मीद, अमन और कामयाबियों से भरा हो। मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से भी क्रिसमस पर मसीही बरादरी को दिली मुबारकबाद। ISPR ने जारी पैगाम में कहा, अपने मसीही भाइयों और बहनों के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। हम मोहब्बत, हमदर्दी और अमन की आलमी इक़दार का जश्न मनाते हैं। मुसल्लह अफ़वाज वतन की खिदमत नज़रियात को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में जिना एवेन्यू इंटरचेंज अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि शब व रोज़ काम करने से ही कौमें तरक्की करती हैं। 42 रोज़ में अंडरपास की तामीर एक नया रिकॉर्ड है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के ट्रैफिक मसाइल ख़त्म होंगे। तरक्की का सफ़र इसी रफ्तार से जारी रहेगा। पाकिस्तान की खुशहाली आगे लेकर जाएंगे। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अब मोटरवे शोटरवे नहीं रहा। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वो ब्रॉडबैंड है, वो बैंडविड्थ है, वो हाई स्पीड कनेक्टिविटी है जो ना सिर्फ हम सबको एक दूसरे से जोड़ते हैं मगर आपको दुनिया से जोड़ता है। आपने हुकूमत को, आपने हमारे इन कोशिशों को रेजिस्ट करना है। अगर इस मुल्क में जब हम जमहूरियत की बुनियाद रख रहे थे तो जदोजहद हुआ, किसी ने हमें ये तो तोहफा में नहीं दिया कि आप जमहूरी मुल्क। इस्लामाबाद में बैठे बुजुर्ग आज भी पुराने मोबाइल पर टेक्स्ट कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अब मोटरवे नहीं ब्रॉडबैंड है। तालीम एक ताकत है जिसे नौजवानों से कोई नहीं छीन सकता। नौजवानों को अपना हक हासिल करने के लिए जद्दोजहद करना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सखर में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, हमें अपना डिजिटल बिल ऑफ राइट्स बनाना है। कहा कि पाकिस्तानी नौजवानों को बराबर के मौके मिले तो वो दुनिया को पीछे छोड़ दें। दुनिया में पहला कंप्यूटर वायरस लाहौर में 2 बच्चों ने बनाया। कहा कि हमें कभी सैलाब तो कभी हीट वेव का सामना करना पड़ता है। खान साहब से ये हमारी रूटीन की मुलाकात थी। ट्यूसडे को हम वकला आते हैं तो आज हम 6 वकील मिले थे और खान साहब से मुलाकात हुई है। आधे घंटे की मुलाकात हुई। आज फैमिली की भी मुलाकात है और खान साहब को मैंने बताया है जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं। खान साहब ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, मुज़ाकरात हो रहे हैं लेकिन एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। उस टाइम फ्रेम के अंदर इसमें पेशरफ्त होनी चाहिए, यही बेहतर है। बानी PTI मुज़ाकरात के लिए एक टाइम फ्रेम मुकर्रर करने के ख्वाह हैं। बैरिस्टर गोहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकराती कमेटियों का पहला इजलास गैर रस्मी था। हमारे बाज़ अरकान गैर हाजिर थे। 2 जनवरी को हमारी तमाम कमेटी मेंबरान मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। बातचीत के अगले दौर में अपने मुतालिबात हुकूमती कमेटी के सामने रखेंगे। मुज़ाकरात के नतीजा खेज़ होने के हवाले से पुरुमीद हूँ। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात में पहला ब्रेक थ्रू। PTI की मुज़ाकराती कमेटी को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकराती कमेटी अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात करेगी। कमेटी बानी को हुकूमत से इब्तदाई मुज़ाकरात के हवाले से ब्रीफ करेगी। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का गवर्नर हाउस लाहौर में इजलास। पंजाब में शराकत इक़्तिदार की राह हमवार हो गई। नून लीग की पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके मामलात आगे बढ़ाने की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक नून लीग पीपल्स पार्टी को पंजाब में इंतज़ामी अमूर में हिस्सा देने पर तैयार। पीपल्स पार्टी को मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान और रावलपिंडी डिवीजन्स के इंतज़ामी इख्तियारात में मरहला वार शामिल किया जाएगा। शराकत इक़्तिदार फार्मूले के तहत चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली के हल्कों के काम तरजीही बुनियादों पर करने के अहकाम जारी। तरक्याती मंसूबों की भी मंजूरी दे दी गई। शहरी अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कर सकता है तो वो कानून तो आइन के खिलाफ है, वो तो आइन की खिलाफ वर्जी है, वो कंट्राडिक्शन है आइन के साथ, उसकी तो कोई हैसियत नहीं रही है।
मैं चैलेंज करता हूं कि पीटीआई की किसी एक कारकुन को दिखाए किसी ने गमला तोड़ा हो, किसी ने शीशा तोड़ा हो, किसी ने तशद्दुद किया हो। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं, आम शहरियों के मिलिट्री कोर्ट में फैसले पर मायूसी हुई। हम पर इतने केसेस बनाए गए हैं कि अहम मुकदमात की अहमियत ख़त्म हो गई है। पार्लियामेंटेरियन पर दहशतगर्दी, कत्ल और गद्दारी के मुकदमात दर्ज किए गए हैं। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी कारकुन ने एक गमला तक नहीं तोड़ा। हमारी जिद्दोजहद आइन और कानून की बालादस्ती के लिए है। हम आज़ाद अदलिया चाहते हैं। असद कैसर ने कहा, कल मुज़ाकराती कमेटी का इजलास हुआ। हमने सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया है। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहक़ीक़ात के लिए जुडिशल इंक्वायरी चाहते हैं। इसको पकड़ो, इसको बेल कराओ। ये इतना कीमती आदमी जो नेगोशिएटिंग टीम में जिसको होना चाहिए था, कल वो इस वजह से नहीं जा सका कि ये बेल करा रहा है अपनी। मुज़ाकरात की तो पहली चीज़ ये है कि कम से कम ये केसेस तो विड्रॉ करो। जो काम करने वाले हैं वो यहाँ फिरते रहेंगे और जो लूटने वाले हैं वो हुक्मरान की जमात के अंदर बैठे हुए हैं और आइन को तबाह कर दिया। 26वीं अमेंडमेंट लाकर सारा कुछ सत्यानाश कर दिया। 2012 में जब कहता था कि सब डॉक्टर साहब ये सब इकट्ठा हो जाएंगे, हमें यकीन नहीं आता था। सालिसी होती है जहाँ जेन्युइन डिफरेंसेस, वहाँ नहीं होती जहाँ कब्जा हो। सियासत में हिस्सा लेने वाले तमाम फौजी अफसरान के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। साबिक सदर आरिफ अलवी की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान की बेहतरी के सितारे हरकत में आ चुके हैं। जुल्म का निज़ाम बदलने वाला है। बानी पीटीआई को दूर रखने के लिए जमहूरियत, अदलिया, आइन को तबाह किया गया। करप्शन माफिया मुतहरिक है और गरीब के पास खाने को नहीं। मुल्क में एक पैसे की सरमायाकारी नहीं आई। असल चीज़ है कि लोगों के मुकदमात और मसाइल हल हों। मुल्क के आइन और कानून को ठीक करना चाहिए था। आरिफ हुकूमत की नीयत ठीक है, ना ही अपोजिशन की। जेल जाना तो वज़ीर आज़म के अहदे का हिस्सा है। जेल में अच्छी तरबियत होती है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कभी बंद कमरों में नहीं होते। सियासत में रास्ता अफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए ही निकलता है। किसी के खिलाफ झूठे केसेस नहीं बनाने चाहिए। मुकदमात के ट्रायल में एहतियात होनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स के हवाले से दबाव आ रहा है। कहा कि हम अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखते। मुल्क मुश्किल में है, हमें घर नहीं बैठना चाहिए। इक़्तिदार के लिए ज़मीर का सौदा नहीं करेंगे।